Vrinda ji, in the context of 1984, I would like you to focus on what are the inadequacies in the law which fails to even recognize the crime of targeted violence. क्योंकि ये पॉलिटिशियन पुलिस नेक्सस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बेनिफिट करता है. What is the way forward? Thank you. Thank you, Justice Anil Dev Singh and distinguished panelists and everyone collected here. बहुत ज़रूरी है कि हम इन पर 84 को बार बार बात करें और उस बात को आगे लेकर जाएं. जो सवाल मुझे पूछा मैं उसको 2-3 बातों से जोड़कर उसका जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसका कुछ जवाब जस्टिस अनिल देव सिंह ने हमारे सामने रखा है. 84 मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ. जब 84 हुआ मैंने अपनी आँखों से वो देखा है, और उसके बाद लॉ पढ़ने के बाद मैंने एक रिसर्च किया था जिसमें मैंने 120 ट्रायल कोर्ट जजमेंट्स 1984 के लिए, ज़्यादातर मर्डर केसेस थे, और उनको फिर एनालाइज किया कि क्यों अक्विटल्स हुए. उसमें से 3 के अलावा बाकी सब में अक्विटल्स थे. तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या inadequacies, where are the gaps in the law, where is the failing, why are our witnesses not coming forward, or are there other reasons within the legal system why convictions are not taking place? Broadly, the reasons that I found was, एक तो ये जो कुछ कोर्ट्स दिए गए थे उसमें एक पैटर्न शुरू हो गया था, डिलेड FIR. कोई भी जो दिल्ली में उस समय जानता है कि अगर कोई सिख किसी तरह बच गया था, अगर वो थाने की तरफ चला जाता तो शायद ना बच पाते उस दिन. तो ये कहना कि आपने उसी समय FIR क्यों नहीं लिखा, and not taking into cognizance the extraordinary circumstances where the complicity of various agencies, including the police, was there in the violence. Delayed FIR, फिर investigation में जस्टिस ढींगरा ने as sessions judge judgments after judgments में लिखा कि कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई उम्मीद थी कि किसी को पकड़ सकते थे तो वो सब पे ऊपर उन्होंने इस तरह इन्वेस्टिगेट किया that you will not be able to find the accused. Nameless, faceless mobs had committed the crime. And people were willing to testify because very often they were neighbors, and yet those names were not written. Various basic things of investigation were not done. We saw a repeat of all this, almost as though they had learned from Delhi police in 2002. So clearly there is a pattern that is happening here. तो उसको तोड़ने का, उसको हटाने का, उसको कम करने का क्या उपाय आगे आ सकता है? One of the promises made by the UPA in its 2004 common minimum program was that they will introduce a special law against communal and targeted violence, because that was a strong demand that emerged गुजरात में 2002 में जब मुसलमानों पर अटैक हुआ. उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चला. उसमें उमा चक्रवर्ती, फुल्का साहब, हम में से कई लोग जुड़े हुए थे. उसका एक ड्राफ्ट बनाया गया. उस ड्राफ्ट की मैं 1-2 बातें सिर्फ यहाँ रखूँगी, और वो कानून में क्या होना चाहिए. कंसल्टेशंस हुई, पूरा रिसर्च हुआ कि किस तरह उन लोगों को, खासकर उनको जिसका हाथ है इसके पीछे, who are the masterminds, the sponsors, and those who gain from this, whether politically or otherwise. ऐसा नहीं है कि दुनिया में और जगह पे ये नहीं होता, but their laws have been changed, laws have been amended to hold accountable and bring to justice such people. For instance, one of the things that law recognizes internationally under international criminal law and has been adopted in jurisprudence of many countries is command or superior responsibility. उसका क्या मतलब है? त्रिलोकपुरी का SHO शूरवीर सिंह कहता है, मुझे मालूम नहीं, मेरे से आधा किलोमीटर दूर त्रिलोकपुरी में नरसंहार हो गया सिखों का, और वो ये कह के आज तक बचा हुआ है. चाहे कमेटी को मित्तल कमेटी ने उसको इंडाइक्ट किया, मगर किसी कोर्ट ने उसको सज़ा नहीं दी. क्या उसकी नॉलेज में नहीं था? क्या उसकी अथॉरिटी के अंडर वो जगह नहीं थी? लॉ सेज दैट इफ दैट incident or the perpetrators, it is within your knowledge or they are under your authority,
you will be held responsible, criminally liable, if you have not taken steps to either stop it or to punish them. ये चीज़ें हिंदुस्तान के क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल मिसिंग हैं. बल्कि आप अगर इंडियन पीनल कोड को उठाएंगे तो उसका सबसे द स्मॉलेस्ट सेक्शन इज ऑफेंसेस बाय द स्टेट. जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑफेंसेस करते हैं, वो सारा पीनल कोड आप और मैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं उसके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वह कॉलोनियल लॉ है. आज की तारीख में अगर आप देखें तो स्टेट अथॉरिटी में बैठे हुए लोग पब्लिक ऑफिसेज में, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो, एसपी हो, वो लोग क्राइम्स कमिट करते हैं लोगों के खिलाफ, मगर उनके तक कानून का हाथ नहीं पहुंचता क्योंकि कानून में कुछ बेसिक कमियां हैं. Therefore, to introduce superior responsibility, to introduce individual criminal liability, which are all parts of international criminal law and need to be brought in. This draft was prepared, presented to the UPA government, but like many other things, it was one of those which no government actually wanted to do. कोई भी सरकार इसमें नहीं आपको साथ देगी. सरकारें बदलती रहेंगी, वो साथ नहीं देंगी. ये अगर मुहिम चलानी है, अगर ऐसा कानून पास करना है, विच आई थिंक इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अ पर्सन इन पब्लिक ऑफिस मस्ट बी अकाउंटेबल, मस्ट बी क्रिमिनली लायबल, तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा. दिस विल नॉट बी अ फेवर बिकॉज नो गवर्नमेंट विल वॉन्ट टू रिलिंक्विश इट्स पावर and give power actually in the hands of the people to hold them accountable. So I think this is one of the main things we need to, regardless of which is the regime, constantly put this on the agenda, put this on the map, make alliances across communities between people and citizens of this country to hold those in office accountable. The other thing I want to just say is, regarding the judgment given by Justice Anil Dev Singh, which I think was a jurisprudential landmark in holding the state accountable on the right to, on its failure and duty to protect the people of who suffered. And we know कि उसके बाद अलग अलग राज्यों में जब इस तरह के नरसंहार हुए हैं तो लोगों को उतना भी नहीं मिला जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में था. आज भी रेपरेशन पर कानून नहीं है. अगर कहीं पर होता है तो रिलीफ कैंप लगेगा कि नहीं, रिहैबिलिटेशन होगी कि नहीं, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये सब उसी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर है. जो स्टेट गवर्नमेंट वो वायलेंस को पहले हमारे ऊपर छूट देती है और छोड़ती है. कोई रेपरेशन के ऊपर ना तो कानून है, ना प्रिंसिपल्स है, ना रैशनल आज तक उसका बनाया गया है. कुछ महीने पहले एमनेस्टी ने 84 पर एक मीटिंग रखी थी जहां पर मेरी मुलाकात एक बार फिर दर्शन कौर से हुई थी. वो शायद आज यहाँ पर नहीं है. दर्शन कौर आप लोग जानते हैं, उन्होंने अचकेल भगत के खिलाफ गवाही दी थी. उन्होंने मुझे कहा कि, और उनकी बात से मुझे समझ में आया कि जब हम कॉम्पनसेशन या रेपरेशन को कंप्यूट करेंगे तो हमको एक्चुअली 3 पीढ़ियों के बारे में एटलीस्ट सोचना है. पहली पीढ़ी तो उनके हस्बैंड भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उनको मार दिया गया था. अगली पीढ़ी अपने आप को संभाल नहीं पाती और उस लेवल तक आने की कोशिश करती है जहां उसकी पहली पीढ़ी थी. उनके एक बेटा या 2 बेटे इस वक्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं. तीसरी पीढ़ी कोशिश करती है कि हम पढ़ लिख कर कहीं पहुंचे. तो जब हम रेपरेशन और कॉम्पनसेशन के अमाउंट्स के बारे में सोचें तो हम मिनिमम 3 पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे तो आप रेस्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. इसलिए आज जो स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स दिए गए वो बहुत ज़रूरी है कि वो पीढ़ी अपने आप को आगे ले जा सके, आगे उठा सके. मैं अपनी बात को सिर्फ इससे ख़त्म करूंगी कि नरसंहार करके, टारगेटेड वायलेंस स्पेशली माइनॉरिटीज़ और दलित्स वगैरह आदिवासियों पे करके इलेक्शंस इस देश में जीते गए हैं और बार बार जीते जा रहे हैं. तो डेमोक्रेसी का यहाँ पर टारगेटेड वायलेंस के खिलाफ कोई खास टेंशन नहीं है, तो वो टेंशन हमें क्रिएट करनी होगी. चाहे वो टारगेटेड वायलेंस हो, चाहे वो मुठभेड़ जो पुलिस के दिखाए गए हैं. अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो जो हिंदुस्तान का स्टेट है, मेरे हिसाब से उसने खून इंसानों का चख लिया है. अपने देश के सिटीजन्स का खून वो चख चुका है.
उसको रोकने के लिए हमें एक साथ इन बातों पे खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। Thank you, Vrinder ji. It was a very thought-provoking speech. I would now